हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द ब्रेटन साइकिल. As in yesterday's lecture, I had discussed the Brayton cycle with reheating, intercooling and regeneration. So without the numerical problem, जैसा कि मैं मानता हूँ, without the numerical problem, concept can never be clear. So with the concept, if you do a numerical problem, then you will never forget that concept. तो देखते हैं प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है. सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं, देन वी विल डू इट्स सॉल्यूशन. तो प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि व्हाट द प्रॉब्लम इज ट्राइंग टू से. इन ए गैस टरबाइन पावर प्लांट, एयर इंटर्स अ लो प्रेशर कंप्रेसर हैविंग अ प्रेशर रेशियो ऑफ 3.5. हैविंग अ प्रेशर रेशियो, लो प्रेशर कंप्रेसर यानी कि फर्स्ट कंप्रेसर में एंटर हो रहा है. प्रेशर रेशियो मीन्स P2 upon P1 is given. P2 upon P1 is given 3.5 and efficiency 0.85. Compressor efficiency is also given 8.5. At a 1 bar and 300 Kelvin. So initial pressure and temperature is given 1 bar and 300 Kelvin. Now the cooled air is further compressed in HP compressor to 12.25 बार, यानी कि डबल स्टेज का कंप्रेसर है हमारा. फर्स्ट स्टेज में, देन हमने सेकंड स्टेज में उसको 12.25 बार तक कंप्रेस कर दिया. तो ये कौन सी वैल्यू है? P1, P2 एंड देन P4 इज गिवन. P4 इज गिवन. नाउ द प्रेशर रेशियो ऑफ 3.5. प्रेशर रेशियो फॉर द सेकंड कंप्रेसर इज ऑल्सो सेम and efficiency 0.85. The efficiency of isentropic efficiency of compressor is also same. It enters the regenerator having the effectiveness. तो regenerator एक heat exchanger होता है and regenerator के केस में effectiveness की वैल्यू गिवन है 0.8. The gas coming out of the combustion chamber enters the high pressure turbine of efficiency. तो फर्स्ट पहले जो एंटर हो रहा है हाई प्रेशर टर्बाइन में, इनिशियल टेम्परेचर इज 1100 Kelvin. 1100 Kelvin. तो highest temperature is given 1100 Kelvin. The high pressure turbine drives the compressor. बहुत ही ध्यान से देखिए इस लाइन को. The high pressure turbine drives the compressor. जो high pressure turbine है उसका जो work output है that is being utilized to drive the compressor. To drive the compressor. जब हम diagram draw करेंगे, this is very very important. And there is a reheat between the two turbines. There is a reheat between the two turbines. The gas enters the low pressure turbine of 1050 Kelvin and the exhaust gas coming out of low pressure turbine efficiency, the efficiency of both the turbines are same, 0.88, are used to heat the air in the regenerator before leaving it to the atmosphere. तो regenerator में जो हमारा low pressure turbine है वहां से जो exhaust निकल रहा है उसको हम use कर रहे हैं. And determine the power output. Determine the power output. हमें पावर आउटपुट निकालना है. देन ओवरऑल इफिशिएंसी कैलकुलेट करना है हमें. वैल्यूज गिवन है. Cp फॉर एयर 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड फॉर गैसेज 1.15, गामा एयर के लिए 1.4 एंड गैसेज के लिए 1.33. तो प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से पढ़ना है. अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा हमारा? टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम एंड टीएस डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम एंड टीएस डायग्राम बहुत ही ध्यान से देखिएगा. जो हमने प्रॉब्लम पढ़ी है अब उसमें हम वन बाय वन वैल्यूज पुट करेंगे. तो सबसे पहले मैं ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करता हूं. डबल स्टेज कंप्रेसर है तो दो कंप्रेसर में पुट कर देता हूं यहाँ पे. नाउ इन प्रॉब्लम इट वाज गिवन दैट द एचपी टर्बाइन इज यूज्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर. एचपी टर्बाइन इज यूज्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर and then there is a reheater between the HP turbine and this is reheater, and then this is used in high pressure turbine, and thus between two there is a intercooler, and then first enter to the regenerator. This is atmosphere, and then after regenerator in combustion chamber, this is the all about LP compressor,
HP compressor, HP turbine, reheater, LP turbine, and this is रीजनरेटर। तो प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद में हमारा जो टास्क होता है दैट इज टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। अगर ब्लॉक डायग्राम अगर आपने न्यूमेरिकल समझ लिया है तो आपको सबसे पहले ये ड्रॉ करना है कि कौन से प्लेस पे। तो अब हम इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को मैंने कंबाइंड प्रॉब्लम ली है तो ये थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बट जैसे ही प्रॉब्लम हम कर लेंगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं। पहले कंप्रेसर में 1 to 2, देन इंटरकूलिंग 3, 4 सेकेंड स्टेज कंप्रेशन, देन 5 रीजनरेटर, 5 to 6 कंबसन चैम्बर, 6 to 7 HP कंप्रेसर, 7 to 8 रीहीटर, 7 to 8 reheater, then 9. So this is all about this diagram. अब कंप्रेसर की और टरबाइन की एफिशिएंसी गिवन है, तो there is a irreversibility in turbine. This is 2s2, 4s4, 7s7, 9s9। तो डायग्राम को बड़े ही ध्यान से समझिए। इसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी गिवन है, कंप्रेसर की एफिशिएंसी और टरबाइन की एफिशिएंसी। तो डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे दोनों का। अब वन बाय वन जो इन पॉइंट्स जो गिवन है, वैल्यूज जो गिवन है, गिवन डेटा वो लिखेंगे, एंड देन वी विल सी वेदर द यूनिट्स आर सेम। देन वी विल कन्वर्ट ऑल द क्वांटिटीज गिवन इन एसआई यूनिट्स। तो यूनिट के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अब हम यूनिट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम थी हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम जब हमने पढ़ी है तो उसके अंदर हमारा P1 1 बार T1 300 केल्विन। ध्यान से देखिए जरा, T1 गिवन है, एंड देन P2 अपॉन P1 इज 3.5 बार, एंड देन T3 इज गिवन 310 केल्विन, एंड देन P4 इज गिवन 12.25 बार, एंड T6 गिवन है हमारा, then T6 is given 1100 Kelvin, and then T8 is given, and T8 is 1050 Kelvin. तो हमने सबसे पहले क्या करा, प्रॉब्लम को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, देन उसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है, देन टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम ड्रॉ करना है, एक एक पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से समझते हुए। नाउ नेक्स्ट स्टेप is to find out the pressure and temperature at each the point. To find out the pressure and temperature at each point. तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस है फर्स्ट कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2s। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए रिलेशन होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉलो होता है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है हमारा, बड़े ध्यान से देखिए, T2s अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से देखिए जरा, T2s इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो T1 इज गिवन 300 केल्विन, तो T2s क्या हो जाएगा 300, एंड P2 अपॉन P1 3.5, 1.4 माइनस 1 1.4। T2s की वैल्यू जो हमारी आएगी, एंड T2s
दैट इज 429.26 केल्विन। तो नोट कर लीजिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट कंप्रेसर था हमारा एलपी कंप्रेसर, उसमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा था। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव कैलकुलेटेड द T2s. 2s is the isentropic temperature of compressor. Now the compressor efficiency is given. compressor efficiency क्या होती है हमारी? compressor efficiency में देखिए compressor process क्या था हमारा, ये है, this is तो 1 2s 1 2, तो जो स्मॉलर क्वांटिटी है वो ऊपर आ जाएगी T2s, एंड जो बिगर क्वांटिटी है वो नीचे आ जाएगी। ध्यान से देखिए, कंप्रेसर इफिशिएंसी ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, कंप्रेशन वर्क हमारा ज्यादा होगा तो छोटी क्वांटिटी ऊपर, बिकॉज इफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, इफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, एंड बिगर क्वांटिटी नीचे हमने प्लेस कर दिया, एंड इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे T2, द एक्चुअल टेम्परेचर आफ्टर फर्स्ट कंप्रेशन, द एक्चुअल टेम्परेचर आफ्टर फर्स्ट कंप्रेशन। तो T2 जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे T2s की, एंड T1 इज गिवन 300 केल्विन, अगेन T2 फाइंड करना है, एंड दिस इज गिवन 0.85। प्रॉब्लम में गिवन है हमारा कंप्रेसर की एफिशिएंसी, देन तो T2 जो होगा 452.06 केल्विन। बड़े ध्यान से देखिए क्या करा हमने, 452.06, ये बात हो गई हमारी फर्स्ट कंप्रेसर की। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेज कंप्रेसर है, अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक, T4s अपॉन में T3, T4 अपॉन में T3, गामा -1 अपॉन गामा, एंड वैल्यू ऑफ T3 इज गिवन, तो T4 कैलकुलेट कर लेंगे हम, T3 इज 310, एंड प्रेशर रेशियो इज सेम फॉर बोथ द कंप्रेसर। तो T4 isentropic temperature by using this formula, because reversible adiabatic का formula है, then T4s जो आप कैलकुलेट करोगे that is 443.5 Kelvin. Similarly, isentropic efficiency of compressor, a high pressure compressor is also given, then HP compressor जो स्मॉलर वैल्यू है वो ऊपर, यहां से हम T4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस इज 0.85 T4s वी हैव कैलकुलेटेड, T3 इज 310 एंड T4 वी विल कैलकुलेट द T4 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है। अब देखते हैं T4 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, दैट इज 467.5 केल्विन। ध्यान से देखिए जरा, 467.5 केल्विन, 467.5 केल्विन। अब हमने दोनों ही कंप्रेसर के एग्जिट पे टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। नाउ वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, ए power required for कंप्रेसर। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पावर रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेसर, और इसको क्या कह सकते हैं हम, वर्क इनपुट। रेट ऑफ पावर जो रेट होता है उसको वर्क का रेट जो होता है दैट इज नोन एज पावर। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, पहले फर्स्ट कंप्रेशन में देन सेकंड कंप्रेशन में, यानी कि जो पहला था दैट इज H2 माइनस H1 प्लस X1 H4 माइनस H3। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, CP T2 माइनस T1 CP T4 माइनस T3। अब इन सब की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, तो पुट कर देंगे, और W कंप्रेसर फाइंड कर लेंगे। W कंप्रेसर वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर हम फाइंड कर लेंगे, और वो आएगा हमारा 310.76 केल्विन, किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड 310। ध्यान से देखिए जरा, दिस इज फॉर फर्स्ट कंप्रेसर एंड दिस इज फॉर सेकेंड कंप्रेसर, एंड देन WC
वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेसर, पावर इनपुट कुछ भी कह सकते हैं इसे, बिकॉज रेट है किलो जूल पर सेकेंड, पावर की यूनिट किलो वाट होती है और वर्क की यूनिट जूल होती है। तो जब रेट निकाल लेते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। कैलकुलेट कर लिया हमने। नाउ वी विल कैलकुलेट द पावर आउटपुट ऑफ द एचपी टरबाइन। क्वेश्चन में एक लाइन गिवन थी, क्या थी वो लाइन? द एचपी टरबाइन इज यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर, एचपी टरबाइन इज यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर। तो यानी कि पावर आउटपुट ऑफ एचपी टरबाइन किसके इक्वल है? कंप्रेसर के वर्क इनपुट के। वर्क इनपुट ऑफ कंप्रेसर वो हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना है वो? 310.76। तो टरबाइन, एचपी टरबाइन में अब गैस हो चुका है हमारा, तो एचपी टरबाइन का वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीपी T6 माइनस T7, T6 माइनस T7। तो T6 की वैल्यू गिवन है हमें, T6 की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है, तो यहां से हम T7 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो T7 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 829 केल्विन। तो स्टेप बाय स्टेप हम लगभग सारे टेम्परेचर कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट प्रोसेस? टरबाइन की इफिशियंसी गिवन है, एचपी टरबाइन की इफिशियंसी गिवन है। नाउ टरबाइन की इफिशियंसी, एचपी टरबाइन की इफिशियंसी गिवन है, उससे हम T7S कैलकुलेट कर लेंगे, T7S कैलकुलेट कर लेंगे। तो T6 माइनस T7, T6 माइनस T7S। अब जो टरबाइन के केस में क्या हो रहा है हमारा? दिस इज स्मॉलर क्वांटिटी, 6 7S 7, दिस इज स्मॉलर क्वांटिटी। कंप्रेसर के केस में स्मॉलर क्वांटिटी ऊपर, टरबाइन के केस में स्मॉलर क्वांटिटी ऊपर एंड बिगर क्वांटिटी नीचे। तो यहाँ से T7S कैलकुलेट कर लीजिए। T6 इज गिवन, टरबाइन इफिशियंसी इज ऑल्सो गिवन 0.88। तो यहाँ से हम जो T7S कैलकुलेट करेंगे दैट इज 79292 केल्विन। तो कैलकुलेटर का यूज करके हम ये टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट हमने एचपी टरबाइन पे भी कैलकुलेट कर लिया। अब प्रेशर रेशियो देखते हैं क्या होता है हमारा। P6 अपॉन में P7, T6 अपॉन में T7, गामा अपॉन गामा माइनस 1। अब यहाँ पे गैसेस का गामा जो है 1.13 यूज करेंगे हम, 1.13 यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब टरबाइन में गैस आ गया। आफ्टर कंबशन चैम्बर इट इज इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ से हम P7 कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज P6 इज गिवन, T6 इज गिवन, T7 वी हैव कैलकुलेटेड। अब यहाँ से हमने P7 कैलकुलेट करना है। तो P7 इज 3.275 बार, T7 जो है 3.275 बार। P7 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम नाउ वी विल कैलकुलेट द फॉर लो प्रेशर टरबाइन। फॉर लो प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन में क्या है? T8 T9S P8 अपॉन में P7 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है हमारा, तो हमने P7 कैलकुलेट कर लिया था। अब T9S कैलकुलेट कर लेंगे हम। T9S जो हमारा होगा दैट इज 780.52। देखिए अब हम लो प्रेशर टरबाइन में आ गए हैं, तो इससे हमने T9S कैलकुलेट कर लिया है। ध्यान से देखिए जरा, बाय यूजिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक। P7 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, P8 हमारे पास है, दोनों ही वैल्यू हमारे पास थी।